Jinendra. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Anybody wants to share something? We cannot hear you. I am seeing you speaking, but कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मुझे लगता है माइक्रोफोन पास में लेके बात करो. बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है पर सुनाई नहीं दे रहा है. सबको सुनाई देता है कि किसी को भी? नहीं आवाज नहीं. नहीं सुनाई दे रहा. बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा. हाँ, कुछ तो भी प्रॉब्लम है शायद माइक्रोफोन में या फोन के अंदर. Okay, so let's start peak state programming. अभी सब मोस्टली लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं. Okay, everybody. Run faster, run. Race in a running position. Everybody. You can feel that you are running an Olympic race and you are winning. In the same position, just move your Everyone hands faster start. and faster. Okay. And so turn on your let's videos. start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. छाया जी, Yes. आप भी Come on, ये faster, पीक faster, स्टेट faster, प्रोग्रामिंग faster, करें. Yes, आपको मैं समझाती हूँ अगर क्या है. Come on, faster. Yes. Come on. Yes, you can do it. Come on. इसे रनिंग faster. पोजीशन लेनी है, Yes, उसमें yes. भागना है. Keep running. Fast. Yes, come on. Fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, Very nice. I am the winner. And We you say all to are the yourself, winners. I am the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Everybody Yes. do your peak Yes. state programming. It's very Come on. important. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. Yes, And I am the now winner. say to yourself, yes, I am the winner. Yes, we all are Yes, the winners. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Repeat, I can. I can. I will. I must. I must. I can. I can. I will. I must. तो हम सभी को अपने नेगेटिव फीलिंग्स के थ्रू और अभी अपने नेगेटिव विचारों के थ्रू हम सबको जीतना है. उनसे आगे बढ़ के हमें लाइफ में आगे बढ़ना है. तो इसीलिए हम पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं क्योंकि एक विनिंग एटीट्यूड भी बनते जाता है कि वी हैव टू विन ओवर अवर नेगेटिव फीलिंग्स, वी हैव टू विन ओवर अवर नेगेटिव थॉट्स. वो आसान नहीं होता है. इनिशियली लगता है कि कैसे करें, पर ये हमें मैजिक बुक पूरी तरह से सिखाती है कि कैसे हमें करना है. Okay, so we will start magic book. So today we will be reading about second day and you will be practicing this from tomorrow. I mean tomorrow, the day 2.
Okay, so let me quickly share the screen. ओके, सो कल हमने नियामतें पढ़ी थी कि आपको 10 नियामतें कैसे लिखना है और क्या करना है नियामतें लिखने के बाद। तो सबको ही अभी सबने लिखी है नियामतें, राइट? फर्स्ट डे। आज हमारा सेकंड डे है, उसका नाम है मैजिक रॉक। तो आज आप सबको एक रॉक ढूंढना है जो आप हमेशा अपने साथ रख सकते हो और आपको लेके सोना है। और कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो रोंडा बोन हमें अभी बताएगी ये चैप्टर में। सो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Batul, you want to read? Yeah, but her microphone is not working, I think. Anybody wants to read? Okay. Amina is saying not possible today. That's fine. Fari, you want to read? Yeah, I will read. Yeah. Thank you, thank you. So you all can see here in this picture. Okay, let's anybody else describe. That will be better. Anybody wants to describe this picture? एक लैंप है Mm-hmm. और एक पत्थर रखे हुआ है, उसके ऊपर वो स्पार्कल Magical light, sparkling mirror. लाइट Magical lights इसका यूज हो रहा Yes, है। yes. Very nicely described. बहुत ही अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेड साइड है, यहाँ पे बेड है, ये बेड साइड टेबल है, यहाँ पे अलार्म भी रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ बुक्स भी पड़ी है और यहाँ पे लैंप वगैरह भी है और यहाँ पे एक रॉक है जिसके अंदर से बहुत सारी मैजिकल स्पार्कल्स निकल रही है। तो ये आज का हमारा चैप्टर पूरा ही रॉक के बारे में है। तो कैसे आपको आज एक रॉक ढूंढना पड़ेगा। मैं अभी आपको मेरा रॉक मैं हमेशा लेके ही चलती हूँ। तो जैसे आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं तो अभी निकलेंगे immediately. So I will not be taking a meditation today, but I will show you my rock actually later on. So let's read. Let's start reading from here. Okay. Reflect upon your present blessing, which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens, 1812-1870. In the beginning of working with these practices, it takes concentrate days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practices is about. हाँ, तो यहाँ पे ये चार्ल्स डिकन्स ने क्या बोला है, ये बहुत ही बड़े राइटर थे, आप अगर किसी ने नाम सुना होगा तो चार्ल्स डिकन्स ने क्या बोला है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग। आपके अभी खुद की लाइफ में अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है इसके ऊपर ही हमेशा ध्यान दे, ना कि पास्ट के मिसफॉर्च्यून पे। मतलब आपके हिस्ट्री में जो भी हो गया आपके पास्ट के अंदर, तो जैसे हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, उसमें जो भी हुआ उसके ऊपर आपको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि वो आपको कुछ काम नहीं आएगा। पर जब आप अपने प्रेजेंट ब्लेसिंग्स के अंदर जितना ध्यान देते हो और अपनी प्लेजेंट जो भी नियामतें हैं अभी उसको बढ़ाते हो, जब अभी आपको ये बढ़ाना ही सीखना है कि छोटी छोटी चीजों को भी मैग्नीफाई करना है। जैसे आपके साथ कुछ एक अच्छी चीज हुई, भले पूरा ही दिन आपको किसी ने डांटा, पर एक भी अच्छी चीज बोली उन्होंने, तो आपको उसके ऊपर मैग्नीफाई करना है।
यानी वो अच्छी चीज को बढ़ानी है, तो आपका माइंड इससे सीखता जाएगा कि उसको सब हमेशा ही पॉजिटिव चीजें ही देखनी है और ढूंढनी है। तो यहाँ पे चार्ल्स डिकन ने भी यही बोला है कि हमें पास्ट में नहीं जाना है, हमेशा प्रेजेंट में हमारे पास बहुत सारी नियामतें होती है, इस पे ही हमें ध्यान देना है। तो ये पूरी हमारी प्रैक्टिस यही है, ये हम रात को सोने से पहले करेंगे और ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी ये प्रैक्टिस। तो आगे बढ़ते हैं। Lee Brower presented the gratitude rock practice in the secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. यस, तो यहाँ पे अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पे सीक्रेट मूवी देखा हुआ है? कोई है जिन्होंने नहीं देखा सीक्रेट मूवी? चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। That's fine, Batul. You can read tomorrow. Okay. Oh, Hakim, you need to watch. So you and Batul watch it together today. आप दोनों ने देखना पड़ेगा। I have seen. Okay. मोस्टली मुझे लगता है सभी ने देखी हुई है, बहुत कम लोग होंगे जिसने नहीं देखी है, राइट? तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखी है तो आज देख लेना है या जब भी टाइम मिले 1-2 दिन के अंदर। तो सीक्रेट फिल्म में ये बोला गया था, ये ली ब्रोवर ने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस वहां पे दिखाई थी, ये रॉक प्रैक्टिस। तो रॉक प्रैक्टिस में एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने एक फादर को जिनके बच्चे की मतलब बहुत ही अनरिकवरेबल बीमारी थी वो बच्चे को, उसके फादर को इन्होंने एक ऐसे रॉक दिया। वो बोला कि जब भी आप रॉक को छूते हो तब कुछ ना कुछ अपने बच्चे के हेल्थ के बारे में ग्रेटिट्यूड करना, मतलब शुक्राना करना। तो 6 महीने के बाद क्या होता है, उनके बच्चे की पूरी तरह से रिकवरी हो जाती है। उसको ऐसा डिजीज था जो बिल्कुल आई मीन नॉट क्योरेबल था, अनक्योरेबल डिजीज था उनके बच्चे को। और एक्चुअली क्या हुआ था कि वो बिल्कुल हार चुके थे कि क्या करे, समझ में ही नहीं आ रहा था। ये एक अफ्रीका में ये किसी फादर के बारे में बात है, एक मैन के बारे में। तो ये अफ्रीका में ये उन्होंने इसको रोक दिया था। उसके बाद उनके बच्चे की पूरी हेल्थ अच्छी तरह से हो गई 6 महीने के अंदर। फिर उन्होंने क्या किया, $5 में या कुछ $10 में वो रॉक सबको बेचने लगे, और वो रॉक एक जादुई रॉक बन गया, क्योंकि सभी की लाइफ में बहुत सारे चमत्कार होने लगे। सभी को एक ही चीज बोले कि जब भी आप पत्थर को छूते हो आपको कुछ ना कुछ नियामतें बोलनी है। यानी फिर तो ऐसा हुआ कि ये सीक्रेट की स्टोरी भी secret.tv.in पे आ गई, और ये जो रॉक प्रैक्टिस थी वो बहुत ही प्रूवन सक्सेस हुई वर्ल्ड ओवर। बहुत से लोगों ने उसको हैप्पीनेस के लिए, हीलिंग के लिए यूज किया है। ठीक है, तो लेट्स रीड फर्दर। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from No, a this riverbed. one. Okay, First find a rock or हाँ. something. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, and not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. हाँ, तो आज आपको ऐसा कोई रॉक ढूंढना है, बाहर जाके देखना है, या कहीं ना कहीं पे मिलेगा आपको। मे बी कोई कुछ अगर लेक है या कुछ है तो इसके पास भी जाके आप ढूंढ सकते हो। तो ये जमीन में से होना चाहिए, इतना उसका जरूरी है। और दीदी आपका बता सकता हूँ? हाँ, मैं अभी बताऊंगी जैसे ही चैप्टर फुल कंप्लीट होता है।
क्योंकि अभी बीच में लिंक टूटेगी ना, इसलिए। तो मैं आपको मेरा बताती हूँ। तो आप ये क्या करते हो, ये ऐसा कोई भी रॉक ले लीजिए जो स्मूथ हो, आपको रात को लेने में वो ना हो, मतलब चुभे ना, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, और इजीली आपके पाम के अंदर आ जाए, सोते टाइम पे आप लेके भी सो जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा आपको रॉक ढूंढना है आज। और यहाँ पे अगर किसी का है तो भी आप बता सकते हो, मैं अपना बताती हूँ अभी। ओके, सो सबको ही आज ये काम करना है, इसलिए आज की प्रैक्टिस, ये कल की प्रैक्टिस इन्होंने बोला था कि आज आपको पढ़नी है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड दिस रॉक। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or a stone already that you can use as your magic rock. यानी आपके पास अगर कोई प्रेशियस स्टोन भी पड़ा है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बस ये यहाँ पे देखो, ये मम्मी बता रहे हैं यहाँ पे उनके पास जो रॉक है, सबको दिखाई दे रहा है? लेट मी हाईलाइट इट, होल्ड। सबको दिखाई दे रहा है? इन्होंने ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं रॉक, बहुत ही स्मूथ व्हाइट कलर का इतना अच्छा रॉक है जो हाथ के अंदर पूरा फिट हो रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू मम्मी फॉर शोइंग। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी स्टोन भी लोगे तो चलेगा, ठीक है? तो आज आपको ढूंढना है, स्पेशली जो नए लोग हैं, मोस्टली जो मेरे साथ बहुत टाइम से बने हुए हैं उनको तो पता है क्या है ये रॉक, इनके पास ऑलरेडी होगा। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use a alarm clock, put it next to your alarm clock. हाँ, तो ये जो भी आपको ये मिलेगा रॉक, आपको क्या करना है, हाथ में लेके उसको आपको बेड साइड पे ऐसी जगह पे रखना है जो आपको दिख सके इजीली, क्योंकि ये इजी होगा कि आप भूल जाओगे इनिशियली। तो ये एक प्रैक्टिस बनाने के लिए, एक हैबिट बनाने के लिए आपको ऐसी जगह पे रखना है जो आपको प्रोमिनेंटली दिखे रोज। तो सोने जाने से पहले ही आपको ये रॉक दिखे, उसको आपको हाथ में लेना है, और क्या करना है वो आगे बताएंगी रोंडा बोल। ओके, लेट्स सी। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. तो अभी आपको क्या करना है ये प्रैक्टिस के लिए, आप जहां पे भी आपने ये मैजिक रॉक रखा है वो आपको दिखना चाहिए, राइट? सोने से पहले तो एग्जैक्ट नहीं, अगर लू में जाना है या कुछ भी ब्रश करते हो आप रात को, सब अपने पूरे रिचुअल्स, जो भी नाइट के रिचुअल्स होते हैं सब फिनिश करके, पूरी तरह से फोन को भी रख के, जैसे ही आप सोने के लिए ही जा रहे हो और कुछ काम अभी नहीं बचा है, उसी टाइम पे आपको ये रॉक लेना है अपने हाथों के अंदर, और आपको पूरे दिन में क्या क्या अच्छी बातें हुई ये सोचनी है। इसमें हो सकता है कि कोई कोई क्या नहीं अच्छा हुआ वो भी आ सकता है, पर आपको भी हैबिट बनानी होगी। खाली उन्हीं चीजों को सोचना है जो अच्छे से हुई थी वो दिन के अंदर, और फिर सबसे ज्यादा जो अच्छी बात हुई है, द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करते हुए ही सो जाना है। अभी क्या होगा, थोड़े दिन के बाद आप ये जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो
थोड़े दिन के बाद ऐसा होगा कि हाथ में लेते ही कोई एक या दो चीज आप सोच रहे हो, तब तक तो आपको नींद ही आ जाती है। मेरे साथ ऐसा ही होता है और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे शेयर भी किया है। तो सेम थिंग आपको भी करना है, मैजिक रॉक लेना है, पूरे दिन का सोचना है, सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद करना है और सो जाना है। ओके, सो इट्स अ वेरी इजी प्रैक्टिस। सो अभी आपको ये नेक्स्ट 26 डेज तक रोज करना है। तो फरी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फर्दर। Yes. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can. Be for that thing and say thank you. तो आपके खुश होते हुए बहुत ही शुक्राना में आपको सोना है। ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे क्यों हम ऐसा करते हैं, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैजिक रॉक की ये जो प्रैक्टिस है, हमारे हमारे पास वी हैव टू माइंड्स, कॉन्शियस माइंड जिससे हम अभी सोच रहे हैं, या जो हम कुछ भी अगर हमारी लाइफ में सब कुछ हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, अगर कोई एक्शन लेना है या जो भी है। पर हमारा जो सबकॉन्शियस है, वो हम हमारे कॉन्शियस माइंड से हम जो भी हमारे सबकॉन्शियस को बोलते हैं वो हमारे सामने सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन के थ्रू हमारे सामने लाके सब चीजों को रखता है। जैसे अगर मैं सबकॉन्शियस को बोलती हूँ कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, मैं बार बार उसको बोलती हूँ, और ऐसे टाइम पे बोलती हूँ जब सबकॉन्शियस एक्टिव है, ना कि कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव। तो क्योंकि कॉन्शियस माइंड अगर बहुत एक्टिव है तो वो डाउट क्रिएट करेगा, वो बोलेगा कि नहीं ये तू क्या बोल रही है, तू कोई पावरफुल नहीं है। ये कॉन्शियस माइंड है अगर कुछ डाउट्स दे रहा है तो सबकॉन्शियस कब ज्यादा एक्टिव होता है, मैं भी आपको ये बताती हूँ। रात को सोने से पहले जब हम थोड़ी थोड़ी सी ड्राउजी स्टेट में आते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस ज्यादा एक्टिव होता है। उसी तरह से जब हम उठते हैं सुबह में, तो उस टाइम पे भी हम थोड़े से ड्राउजी होते हैं, क्योंकि अभी हमारी नींद पूरी तरह से खुली नहीं है। तो ये जो दो स्टेट होते हैं हमारे माइंड के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे स्टेट होते हैं। ये स्टेट में हम जो भी करते हैं वो ही हमारी लाइफ होती है, इतना समझ लेना। अगर आप सोने से पहले ड्राउजी स्टेट में हो और आप कुछ अच्छा अपने माइंड को बोलोगे, तो वही सबकॉन्शियस आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस के थ्रू आपको लाके रखेगा। उसी तरह से जब आप उठते हो सुबह जल्दी, जो भी टाइम पे उठते हो, अगर आप उसमें थोड़ा सा ड्राउजी, यानी सभी लोगों की नींद खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तब आपका सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए मैंने कल आपको बोला था कि उठने के बाद तुरंत ही आपको ये लिखना है, क्योंकि जब तक आप ब्रश करोगे, जब तक आप कुछ फोन ले लोगे, फोन में देखने लगोगे या फिर कुछ भी करोगे, तब तक आपका सबकॉन्शियस डीएक्टिवेट हो जाएगा और कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि आपको ये प्रैक्टिस ड्राउजी स्टेट में करने से क्या फायदा होगा। कि आप अगर कुछ अच्छा सोच के सो रहे हो, तो सबकॉन्शियस आपको जब आप नेक्स्ट डे एकदम उठोगे तो एकदम फ्रेश होके उठोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस को आपने बोला कि वाह मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छी चीजें हो रही है। तो यही है पूरी जो हमारी जो न्यूरल पाथवेज की जो ट्रेनिंग है, वो इसी तरह हम करेंगे सबकॉन्शियस के थ्रू। ठीक है, तो ये सबको होप के सबको समझ में आया। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। तो फरी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फर्दर। Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching, then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you're grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day.
हाँ, यानी आपको सोना भी शुक्राना में है और उठना भी शुक्राना में ही है। तो ये आपको ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको कोई भी किसी को भी डिस्काउंट नहीं करना है ये प्रैक्टिस को। ये प्रैक्टिस इतनी ही जरूरी है जितनी सुबह नियामतें लिखना। तो ये प्लीज अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे कोई किसी को भी ये प्रैक्टिस को ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए, अपने माइंड को पूरी तरह से बदलने के लिए। ठीक है, तो ये सबको ही करना है। और क्या होगा कि ये जो आपका रॉक होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, एक मैजिक रॉक की तरह ही हो जाएगा। अभी एक तो एक सादा रॉक है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे सीक्रेट मूवी में भी उन्होंने बताया था कि वो एक साधारण रॉक था, जो जिन्होंने एक्चुअली यूएस से इन्होंने रॉक्स भी भेजे थे। उन्होंने क्या किया, नदी किनारे जाके वहां से रॉक्स उठाए और अफ्रीका भेजे थे उन्होंने। यानी वो रॉक्स में कुछ नहीं है। मैजिक कब होता है उसमें, जब आप अपने अच्छे वाले थॉट्स डालते हो, इसलिए ये रॉक मैजिक रॉक बन जाता है। अभी जैसा मेरा भी जो रॉक है, इतने टाइम से मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस, तो वो एनर्जाइज्ड है। उसको हाथ में लेके ही आपको अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि उसको हमने एनर्जाइज किया हुआ है थ्रू हमारे वाइब्रेशंस, जो हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उसके थ्रू। इसीलिए ये रॉक आपका बहुत ही अच्छा रॉक है, अच्छी प्रैक्टिस है। इसीलिए आपको ये करना ही करना है, ईच डे, ईच नाइट। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। The from here, right? The count your blessings. Yes, yes. The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in the state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. Can you scroll up? Yeah, sorry. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. तो ये प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस होगी आपकी जो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देगी। एक तो सुबह आप उठ के तुरंत ही नियामतें लिखोगे, तो वो आपके माइंड को ट्रेन करेगा, आपके सबकॉन्शियस को। और फिर रात को भी ये प्रैक्टिस करोगे आप सोने से पहले, तो आप एक मैग्नेट की तरह बनने लगोगे, क्योंकि आपका दिन भी अच्छा ही जाएगा, क्योंकि आप सुबह ही अपने बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हो। जैसे ही आप नियामतें 10 लिखते हो, आप बहुत ही अच्छा फील करने लगते हो, आप एनर्जेटिक भी हो जाते हो। धीरे धीरे आप जिसमें आपकी नेगेटिविटी के अंदर जो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वो अभी वेस्ट ही नहीं होगी। इसीलिए आप ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे पूरे दिन में। तो ये सब आप कर पाओगे ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ओनली बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो आप क्रिएट करोगे अपने खुद के अंदर by doing this practice. Okay, so that's it. तो यहाँ पे एक रिमाइंडर दिया हुआ है, जो आपको कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने हैं, पर आपके लिए वैसे भी ये हम आगे के दिन में ही पढ़ते हैं, इसलिए आपको ये मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2। The magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Say the magic words, thank you, for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Read tomorrow's magical practice today. तो ये सबको ही समझ में आ गया रॉक कैसे फाइंड करना है, और अभी मैं आपको मेरा रॉक बताती हूँ। होल्ड ऑन जस्ट।
ये सबको दिखाई दे रहा है? ये एक्चुअली मेरा रॉक वैसे मम्मी ने जैसे दिखाया था वैसे ही था, पर ये मेरी बेटी ने एक्चुअली इसको पूरा ये किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो इसमें मस्त ऐसा हार्ट बनाए हैं और बहुत सारे हार्ट्स बनाए हैं। तो सभी को दिख रहा है ना? आपका बहुत बड़ा है ना दीदी, हाथ में नहीं, मुट्ठी ये में हाथ बंद में हो होता जाता है, आराम से हाथ में हो जाता अच्छा है, या ओके। हाथ में फिट कितना होता है। सुंदर दिख रहा है, हम भी भिजा देंगे बेटी को मुझे, पक्का हमारे पक्का। लिए भी प्रिंट कर देंगे। वो हमारी आर्टिस्ट है, छोटी थैंक यू सी सो आर्टिस्ट है मच। मेरी। बहुत ही जबरदस्त आर्ट वाओ बनाती है। ग्रेट। तो उसने ऐसे ही बहुत सारे उसने पेंट किए थे। एक मैं इंडिया लेके आई थी, अभी अच्छा फरवरी में मैं इंडिया भाई की शादी में आई थी, तब मैं वहीं पे छोड़ के आई थी, भूल गई थी मम्मी के पास। तो अच्छा फिर ये दूसरा रेडी था मेरा यहाँ पे आने के बाद। ऐसे तीन वाह चार रॉक्स है मेरे पास, पर ये मेरा अभी अभी बहुत टाइम से तो यही चल रहा है मेरा ये रॉक। बहुत एनर्जाइज है, इसको हाथ में लेते ही मुझे अच्छा फील होने लगता है। वाह, बहुत बहुत सुंदर है आपका, बहुत ही। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो लेट मी सी, किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द थैंक यू, रिगार्डिंग द रॉक किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जब मैं पूछती हूँ तो शायद उसमें ही सबका क्वेश्चन आ जाता होगा। हाँ। अच्छा है ना? ये मैम एक बार रॉक दोबारा दिखाना अपने वाला। हाँ हाँ, ये रहा। ये इतना स्मूथ है और एकदम मस्त है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है पर मुझे मेरे हाथ में आराम से फिट हो रहा है। तो मैं ये लेके ही सो जाती हूँ। मैं तो मेरे पास ऐसा भी नहीं होता है कि मैं रखने का भी मेरे पास टाइम नहीं होता है बेस्ट थिंग सोचने के बाद। क्योंकि तब तक मुझे नींद ही आ गई होती है ये रॉक हाथ में लेने के साथ ही। तो मोस्टली ये मेरे बेड पे ही मिलता है मुझे सुबह, जैसे आज भी मैंने अभी बेड से ही उठाया। दिखा ना आपको अमन जी? ओके यस यस ओके थैंक ओके, सो कल हमने पढ़ा था हाउ टू एलिमिनेट बैड फीलिंग्स। तो हमने देखा कि अगर हमें बैड फीलिंग्स को हटाना है तो उसका ओनली एंड ओनली वन थिंग है जो हम कर सकते हैं, वो क्या है? गिविंग लव, ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्यार से भर लेना है। तो दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू टू एलिमिनेट अवर बैड फीलिंग्स। ओके, फिर हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारी बॉडी को हम देखते हैं एक एम्प्टी कप की तरह है, राइट? उसमें जितना अभी यहाँ पे ये एम्प्टी कप इन्होंने दिखाया है और उसको ऐसे पानी से भर रहे हैं हम। तो उसी तरह अभी हमारा बॉडी क्या है, एक एम्प्टी कप की तरह है। उसको हमें इतने ज्यादा प्यार से भर देना है। कैसे भरेंगे? ज्यादा अच्छी थॉट्स लाके, हमेशा ही खुश रह के, अगर जो भी आता है, कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है उसमें भी अपने आप को वापस अच्छे वाले फीलिंग्स में लाके, जो हमने आगे पढ़ा था, जो हमने जोन्स क्रिएट किए हैं, जो लाइन के अबोव वाली फीलिंग्स और लाइन के बिलो वाली फीलिंग्स, हम अब ये सब रिवाइज भी कर चुके हैं और ये सब पढ़ भी चुके हैं, राइट? तो आपको अगर आप ये एफर्ट्स लगाते हो, जैसे जैसे आप खुशियों में ज्यादा रहना ट्राई करते हो, वैसे वैसे आपका ये कप भी भरता जाएगा। अभी कितना भी एम्प्टी हो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी खाली है कोई बात नहीं। अभी आपके हाथ में है, आपके हाथ में चॉइस है कि आपको ये कप कैसे भरना है। तो आप हमेशा ही खुशियों में रह के, हमेशा ही शुक्राना में रह के आपका ये कप फिल होने वाला है। ठीक है? तो ये हमने कल पढ़ा था और आज पढ़ेंगे डोंट रेजिस्ट बैड फीलिंग्स। तो फरी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। Yeah. Don't resist bad feelings. Everything has its perfect place in life.
including bad feelings. Without bad feelings, you would never know what it feels like to feel good. You would just feel the one blah. Feeling all the time because feeling all the time because you would have nothing to compare your feelings to. You won't know what it feels like to feel really happy, excited, or joyful. It's through feeling sadness you know how good it feels to be happy. You can never remove bad feelings from life because you are part of life, and without them you won't you wouldn't you would not have good feelings. तो यहाँ पे ये भी समझना है कि हमारी पूरी लाइफ कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है। हमारे हार्ट बीट्स भी ईसीजी में ऊपर नीचे ऐसे दिखाती है। उसी तरह से हमारी लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी तरह से हम बिल्कुल बैड फील ही नहीं करेंगे, नहीं होगा, पर वैसे इंस्टेंसेस बहुत कम होते जाएंगे। तो आपको क्या होगा, जब आप ज्यादा गुड फीलिंग्स में ट्राई करते हो रहना, और कभी कभी अगर बैड फीलिंग्स आती भी है, तो जो गुड फीलिंग्स आती है आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे और आपको पता चलेगा कि हाउ टू फील रियली टू बी हैप्पी, एक्साइटेड एंड जॉयफुल। तो हमारे लिए बैड फीलिंग्स का भी इतना ही प्लेस है हमारी लाइफ में, और बैड फीलिंग्स भी हमारी लाइफ में हमें याद दिलाती है कि हमें खुशियों में रहने से कैसा फील होता है। तो जैसे अगर आपकी लाइफ में मान लो कभी कभी ऐसे मोड आते हैं कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं, पर जब हम जैसे भी करके किसी होप के थ्रू, शुक्राना के थ्रू जैसे भी हम ऊपर आते हैं, तो हम इतना ज्यादा इलेटेड फील करेंगे क्योंकि हमने बहुत टाइम नेगेटिविटी में गुजारा होगा। तो जब हम अच्छा फील करते हैं, कुछ भी एक्साइटेड या हैप्पी शुक्राना में फील करते हैं, तो वो फीलिंग्स ही कुछ अलग होगी आपके लिए। आपको बहुत ज्यादा ही वो खुशियां देगी वो फीलिंग्स। ओके, सो ये लेट्स रीड फर्दर। If you feel bad, okay. If you feel bad about having bad feelings, you are adding more power to your bad feelings. Not only your bad feelings get worse, but you will increase the negativity you are giving out. Now you understand that bad feelings don't bring the life you want, which will make you more mindful not to let bad feelings take over you. You are in charge of your feelings. And so if you have a bad feelings sweeping over you, one way to discharge its energy is to lighten up. तो अगर आपको ये एक तो समझ लो कि आपको अगर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, अभी आप शुक्राना में रहोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अच्छा फील करोगे, पर जिस दिन आपको कुछ हुआ, मतलब कुछ आया, वो थॉट आपके दिमाग में अटक गया, या तो फिर कुछ भी पास्ट में से कुछ भी लेके आ सकता है, या तो कभी कभी लाइफ हमें टेस्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ ला सकती है हमारी लाइफ में। तो वो टाइम पे आपको रेजिस्ट नहीं करना है कि मुझे तो नहीं, अभी तो मुझे अलिफिया ने या बताया है, रोंडा बर्न ने बताया है कि नहीं, हमें तो हमेशा अच्छा ही फील करना है, मुझे क्यों बैड फीलिंग्स आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई बात नहीं, बैड फीलिंग्स आ रही है, उसको आने दो, उसको ऑब्जर्व करो कि अच्छा क्या हो रहा है मेरे माइंड के अंदर, क्योंकि अभी ये सब प्रैक्टिसेस आपको मोर अलर्ट बनवा देगी, अलर्ट करेगी। तो जैसे ही आप अलर्ट हो जाते हो कि अच्छा मुझे क्या फील हो रहा है, अच्छा मुझे बैड फील हो रहा है, तो अभी मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस लाइटन अप करना है अपनी एनर्जी को। कैसे करना है, कुछ भी ऐसी चीजें सोच के या ऐसा करके जो आपको अच्छा फील करवाएगी, दैट्स इट। यानी रेजिस्टिंग बैड फीलिंग्स आपको मोर बैड फीलिंग्स लाएगा, क्योंकि जो चीज आपको नहीं चाहिए वो चीज बार बार आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे बैड फीलिंग्स नहीं चाहिए, तो वो ज्यादा आएगी। पर उसकी जगह पे बैड फीलिंग्स आ रही है, कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लो फर्स्ट तो, कि हाँ मेरा माइंड कुछ ला रहा है पास्ट में से या अभी प्रेजेंट में से भी, कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ इसको चेंज करने के लिए। चलो अच्छा, मेरी ये लिस्ट बनी हुई है सॉन्ग्स की, वो सुन लेती हूँ, नेचर में जाके वॉक कर लेती हूँ,
लिख देती हूँ, लिखने से अगर अच्छा हल्का फील होता है तो लिख देना है, या फिर ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करना है। जो इनिशियली जब मैं ये प्रैक्टिस में आई थी, कुछ भी मेरे साथ नेगेटिव होता था, मान लो अभी मैं जॉब पे हूँ, सही है, जॉब पे हूँ तो मैं ना तो नेचर वॉक ले सकती हूँ, कभी कभी सॉन्ग सुनने का भी टाइम नहीं होता है उस टाइम पे, यानी ऐसी माहौल नहीं होता है कि सॉन्ग सुन सकते हो। पर तो भी मैं क्या करती थी, फटाफट जाके एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए मैं क्या करती थी, अपने फोन में मैंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो वहां पे जाके मैं तुरंत फास्ट फास्ट ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करती थी। मान लो कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बैड फील करवा रहा है, तो मैं वो पर्सन के बारे में ही मैं ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर देती थी। यानी जैसे ही ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करती थी तो मुझे उसकी 10 चीजें याद आती थी, क्या क्या उसमें पॉजिटिव है, मैं तुरंत लिख देती थी और तुरंत ही मुझे अच्छा फील होता था। कभी कभी मैं ऐसे ही लाइक अगर मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है तो मैं ऐसे ही मेरी जनरल लाइफ की नियामतें लिखना स्टार्ट कर देती थी। अगर जॉब पे हूं तो जॉब के बारे में लिखना स्टार्ट कर देती थी। ये इनिशियली मेरी प्रैक्टिस है, अभी मुझे धीरे धीरे मेरा माइंड ट्रेन हो गया है। अभी मेरे माइंड को पता है कि क्या करना है अगर मुझे गुड फीलिंग्स में जाना है तो। कभी कभी बस उसके साथ रहना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको रिलीज करना है, यही बहुत काफी होता है। पर आप अभी अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, तो आपको हैबिट बनानी है, इसलिए आपको ये सब चीजें बहुत काम आएगी इनिशियली। ये सब आपके ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। जब भी आप बैड फीलिंग्स में जाते हो, नेगेटिविटी में, आपको बस इतना श्योर करना है कि वो नेगेटिविटी में आपको उसको नेगेटिविटी को घर नहीं बनाने देना है अपने अंदर। ये आपकी आपकी चॉइस रहेगी, आपकी प्रैक्टिस रहेगी। अगर आपने वो नेगेटिव फीलिंग के साथ अपने खुद को ही आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो अभी आपको कोई पेन आया बॉडी के अंदर, तो आपने क्या किया, वो पेन के साथ खुद को ही आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब आप ही वो पेन बन गए कि अरे ये तो पेन ही है मेरी लाइफ, बस और कुछ है ही नहीं जैसे। तो अभी क्या हुआ, पेन ने ही आपके ऊपर पूरा ओवरटेक कर लिया, मतलब वो पेन आपके ऊपर हावी हो गया। तो अभी आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में, आपके माइंड को बोलना है कि नहीं, ये पेन से तो कहीं ज्यादा बढ़कर मैं हूं, मैं ही खुद क्रिएटर हूं अपनी लाइफ की। तो जैसे ही आपको अपने पेन को कम पावर देना स्टार्ट किया, धीरे 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 वो पेन कम होता जाएगा। ये सरिता जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे वो बोला था, शेयर किया था कि उनको सिरदर्द था, सिरदर्द को जितना पावर कम दिया उतना ही वो चला गया धीरे धीरे धीरे, राइट। तो जो भी चीज को आप पावर देंगे वो बढ़ेगी, जो भी चीज को आप ऐसे ही ऑब्जर्व करोगे, उसको पावर ज्यादा नहीं दोगे, तो वो चीज धीरे 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 आपकी लाइफ से कम होने लगेगी। ये बहुत ही इजी है, अगर प्रैक्टिस चालू करते हो तो ये इजी चीजें हैं, धीरे 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 इजीली सीख जाओगे। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर के चार्ल्स हैनल ने क्या बोला है। Okay. There is a world within, a world of thought and feeling and power, of light and beauty, and although invisible, its forces are mighty. Charles हैनल, चार्ल्स हैनल, न्यू थॉट। Yeah. तो यहाँ पे Life इन्होंने is क्या बोला है चार्ल्स हैनल ने, कि हमारे जो अंदर ही पूरा पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। कौन सा वर्ल्ड है ये पूरा? थॉट का एंड फीलिंग एंड पावर का। तो ये पूरा जो हमारे अंदर का जो वर्ल्ड है, अंदर की जो हमारी दुनिया होती है, वो ही डिसाइड करती है कि हमारे बाहर की दुनिया क्या होगी। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। जो भी पावर्स है वो आपके अंदर है, आपके बाहर कुछ नहीं है। हम इतना सब कुछ बाहर ढूंढते रहते हैं, हम सोचते हैं कि ये इंसान क्यों नहीं बदल जाता, हम सोचते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस क्यों नहीं बदल जाते, क्यों हमारे साथ ये नेगेटिव होता है, क्योंकि आपने कभी अंदर झांक के देखा ही नहीं है कि आपके अंदर ही कितने पावर्स छुपे हुए हैं। आपके अंदर ही इतनी पावर भरी हुई है, लाइट है, ब्यूटी है, लव है, कितना कुछ है अंदर। भले वो आपको अभी दिख नहीं रहा है, ऑल्दो इट्स इनविजिबल,
but its forces are mighty. ये जो भी जितने सारे लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ ये सब चीजें बोली है, उसके पीछे जरूर ना जरूर कोई कारण है. आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझना है कि जो भी आपकी दुनिया है वो बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है. अगर आप चाहते हो तो आप अपनी परिस्थितियां, अपने सर्कमस्टांसेस सब कुछ चेंज कर सकते हो. अभी आप ये जो भी कर रहे हो ये क्या है? अभी एक आपका माइंड एक गार्डन की तरह है. वहां पे पूरे पास्ट में से आपको वीड्स निकालने हैं, क्योंकि वीड्स जब तक होंगे तब तक वहां पे अच्छा नया गार्डन नहीं बन पाएगा. तो यहाँ पे आज आप हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीड्स डाल रहे हैं इस यही गार्डन में. कौन से सीड्स? विचारों के सीड्स, थॉट्स के सीड्स. तो आप आज ये सीड्स डालोगे तो आपको वही इसका फ्रूट कल मिलेगा. तो यही ये सब प्रैक्टिसेस, शुक्राना की प्रैक्टिस है या पावर बुक में हमें जो भी चीजें अभी सीखने को मिल रही है, वो सब चीजें आपका फ्यूचर डिसाइड करती है. और कैसे कैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको यानी यकीन भी नहीं होगा कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई. ये आपको होगा ही आपके साथ जब आप ये प्रैक्टिसेस बहुत ही अच्छे से पूरे अपना जान लगा के ये प्रैक्टिसेस करते हो और उसको पूरा सरेंडर कर देते हो अपने आप को कि अभी मुझे और कोई राह नहीं दिख रही, बस मैं यही राह पे चलूंगी. दैट्स इट. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. Pari, you can start reading. You're on mute. Yeah. Life is supposed to be fun. When you're having fun, you feel great and you receive great things. When you take life too seriously, you receive serious things. Having fun brings the life you want, and taking things too seriously brings a life you have to take seriously. You have the power over your life, and you can use it to design your life in whatever way you want. But for your own sake, lighten up. हाँ, यानी ये इतनी अच्छी बात यहाँ पे बोली है कि यार लाइफ को फन की तरह लो, इतना सीरियस प्लीज मत हो जाओ. मैं कई लोगों को देखती हूँ इतना सीरियसली लाइफ को लेते हैं, बाप, आई मीन टू मच. अरे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? ऐसा तो क्या है? अपने फ्यूचर को लेके भी वो इतना इनसिक्योर फील करते रहते हैं, वो इतना सीरियसली काम करेंगे, यानी जो भी करेंगे इतना सीरियस हो जाते हैं कि लाइफ में पता नहीं क्या हो गया है. अरे भाई चिल आउट. लाइफ इज वेरी इजी एंड लाइफ इज सो मच फन. इट्स सपोज टू बी फन. आप ये अपनी लाइफ को ऐसे सीरियसली आपने बनाई है, तो अभी भी आपके ही हाथ में है. पावर अपने पास लीजिए. अगर कोई चीजें आपके पास आपके आसपास हो रही थी, इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए अपने ऊपर कि ये जो भी है मेरी वजह से ही है. कहीं ना कहीं पे मैंने ही इसको ये थॉट्स दिए हैं, कहीं ना कहीं पे मैंने ही इसको ये पावर दी है, कहीं ना कहीं पे मैंने ही इसको फीलिंग्स दी है. और जैसी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स में भेजती हूँ, वैसी चीज वो मुझे वापस देता है लाइफ में. ये हमेशा गिव एंड टेक होता है. तो प्लीज लाइटन अप. ऐसी भी लाइफ में इतने सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर. To lighten up about bad feelings, I have imagined bad feelings as wild horses. There's an angry horse, a resentful horse, blaming horse, sulky horse, cranky horse, grumpy horse, and irritable horse. You name it, there's a stable full of bad feelings horses. If I feel some disappointment over something that has happened, then I say to myself, why did you climb on the disappointment horse? Get off it now, because it's heading for more disappointment and you don't want to go where it's going. And so I imagine bad feelings as a wild horses. I climb on and I feel, if I climb on them, then I get off them too. I don't see bad feelings as something that is real, me, or anyone else.
because that is not the truth. Bad feelings are not who you are, and they are not who anyone is. A bad feeling is something you allowed yourself to feel, and you can choose to get off that horse as fast as you jumped on it. तो इतनी अच्छी यहाँ पे एक ये दिया हुआ है एग्जाम्पल की तरह कि आप जब भी कुछ बैड फील करते हो तो आपको इमेजिन करना है कि आप ये ऐसे वाले हॉर्स पे चढ़ गए हो, ऐसे घोड़े पे चढ़ गए हो। यानी कोई कोई घोड़ा एंग्री घोड़ा है, कोई रिसेंटफुल है, कोई ब्लेमिंग वाला है जिसपे आप हमेशा किसी को ब्लेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, या फिर क्रैंकी सल्की हॉर्स है जो आपको इरिटेबल फील करवाता है, ग्रम्पी है आप जब ग्रम्पी होते हो, या तो फिर जो भी आपको ही अपने हॉर्स का नाम देना है। तो जब भी आप कोई बैड फीलिंग्स में जाते हो जो आपका अच्छा नहीं फील करवाती है, कुछ ना कुछ अगर डिसअपॉइंटमेंट ला रही है आपके सामने, आपको अपने आप को बोलना है, अरे तू तो ये घोड़े पे चढ़ गई, तू तो डिसअपॉइंटमेंट वाले घोड़े पे चढ़ गई। तो जैसे ही आप बोलोगे वापस आपको बोलना है कि नहीं, तुझे ये रास्ते पे तो जाना ही नहीं है जो रास्ते पे तू चढ़ गई, जो घोड़े पे तू चढ़ी है। तो जितनी जल्दी आप वो घोड़े पे चढ़े थे इतनी जल्दी आप वो घोड़े से उतर सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो तुरंत ही जैसे ही आप ये अलर्टनेस में आपके आता है कि आप तो ये डिसअपॉइंटमेंट वाले घोड़े पे चढ़ गए, तुरंत ही आपको क्या करना है, अपने माइंड को बोलना है, चलो भाई ये हमारी राह नहीं है, ये हमारी डेस्टिनी नहीं है। तो तुरंत ही आप अगर इमेजिन करते हो कि यू आर गेटिंग ऑफ ऑफ दैट हॉर्स, तुरंत ही आपको अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि वो लाइफ का ट्रूथ है ही नहीं जिस घोड़े पे आप चढ़े थे। आपको हमेशा ही हैप्पी वाले घोड़े पे ही रहना है और उसी के तरफ, आपकी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये आपके लिए बहुत इजी काम होगा जब आप ये इलस्ट्रेशन इमेजिन करोगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। Okay, so let's read further. If you think of bad feelings as a wild horse that you climbed on, it's one way to take the power out of the bad feelings. If someone close to you is cranky, their bad feelings will have far less power to affect you if you imagine them as having climbed on a cranky horse. You will not have their crankiness so personally. But if you do take it personally, you become cranky from their crankiness, and then you just jump on the cranky horse with them. तो यहाँ पे कितनी मस्त बात बोली है। मान लो कि आपका बच्चा बहुत क्रैंकी है आज, तो आपको आपका बच्चा घोड़े पे चढ़ गया है, क्रैंकीनेस वाले घोड़े पे, ये आपको इमेजिन करना है। तो अभी क्या है, इसकी पावर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सोचेगा कि अच्छा ये कुछ पर्सनल नहीं है, ये वो मेरी वजह से क्रैंकी नहीं है, उसको ये अपने आप खुद क्रैंकीनेस वाले घोड़े पे अभी चढ़ी है या चढ़ा है, तो वो थोड़े टाइम के बाद खुद ही उतर जाएगा या उतर जाएगी। तो ये आपको पर्सनली लोगे नहीं और आप उसके साथ क्रैंकीनेस वाले घोड़े पे चढ़ोगे नहीं। अगर आप चढ़ गए तो आपको तुरंत ही सोचना है कि हाँ, मैं अपने बच्चे के साथ मैं भी खुद भी क्रैंकी हॉर्स पे जंप कर दिया मैंने भी, तो अभी आपको उतरना है। ठीक है, ये बहुत ही यानी एकदम फनी वाला ये है जो भी है इमेजिनेशन, पर बहुत मजा आता है जब आप करते हो तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा ही कोई ना कोई घोड़े पे आप चढ़ते हो और वो घोड़े से आपको उतरना है अगर वो बैड फीलिंग्स वाला घोड़ा है। ठीक है, तो और ये सब चीजें आप पर्सनली भी लेना कम हो जाएगा आपका जब आप देखते हो। मान लो आपके मदर इन लॉ है जो मे भी कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं कि भाई तूने ऐसा ये अच्छा नहीं किया या तूने ये नहीं किया, तो समझ लीजिए कि वो अभी ब्लेमिंग वाले घोड़े पे चढ़े हैं, कोई बात नहीं, उतर जाएंगे। तो आपको ये पर्सनली नहीं लेना है। ओके, तो लेट्स रीड। लाओ त्सू ने क्या बोला है यहाँ पे, फाउंडर ऑफ टाओइज्म। Respond intellectually even to unintelligent treatment.
रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली टू इवन टू इंटेलिजेंट ट्रीटमेंट। Intelligent treatment. हाँ, कोई बात। इसका मतलब ही यही है कि कुछ भी लाइफ में अनइंटेलिजेंट चीजें भी आती है, आपके हाथ में है, आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगे इंटेलिजेंटली। ठीक है, तो दैट्स इट। लेट्स सी हाउ मच इट इज। ओके, ओनली 2। Oh, it's already okay. We can read these 2 paragraphs. It's okay. Shall I start? Okay. Yeah. And so, with anything in life that I don't want, I use my imagination to have fun and take the power of what I don't want. Sometimes, watching myself or other people ride wild horses in various life situations make me laugh. And when you can laugh yourself out of the bad feelings, that is really something. You have just changed your life. हाँ, यानी यहाँ पे हम कितनी चीजों को इतनी सीरियसली लेते हैं लाइफ में। मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो पढ़ते नहीं है, या फिर मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, या कुछ मेरे पास पैसे नहीं है। ये सब चीजें क्या है, आपने बहुत ज्यादा ही सीरियसली लिया है। इतनी भी बुरी नहीं है अपनी लाइफ। जब आप सोचने बैठते हो, एक ही चीज को लेके आप रो रहे हो, अगर आप देखोगे तो इतनी सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होगी जो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जिसको आप कभी देखते ही नहीं हो। एक ही चीज को लेके बार बार रोते रहते हो। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो पूरी ये हो चुकी हूँ या ये हो चुका हूँ, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा है लाइफ में, पता नहीं क्या क्या कितना सीरियसली लेके बैठे हो। अभी आप जब ये देखोगे कि वाह, मैं तो ये सब घोड़े पे चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, लोग भी ऐसे हैं, क्रैंकीनेस के घोड़े पे चढ़ जाते हैं, कभी कभी ब्लेमिंग वाले घोड़े पे चढ़ जाते हैं। तो यानी लाइफ में फन ही चालू हो जाएगा। आप कुछ पर्सनली लोगे भी नहीं, और आप खुद ही कभी कभी आप खुद हंसोगे अपनी लाइफ की सिचुएशंस के ऊपर। अगर आप डिसअपॉइंटमेंट के घोड़े पे चढ़े हो आपको खुद को ही हंसी आएगी कि वाह, मैं कैसे ये डिसअपॉइंटमेंट के घोड़े पे चढ़ गई, चलो कोई बात नहीं, तो अभी उतरना मेरे हाथ में है। तो आपको खुद को हंसी भी आएगी कि वाह, ऐसा भी होता है, और धीरे 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 आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि आपने चीजों को लेना सीरियसली बंद कर दिया होगा और उसको ऐसे हंसी में लोगे आप। ओके, लेट्स रीड फर्दर। So, if you are feeling bad, don't give that bad feeling more power by beating up on yourself that you feel bad. If you do that, you are just whipping the wild horse into a bigger negative frenzy. The idea is not to hate bad feelings, but to deliberately choose good feelings and choose them more often. When you resist bad feelings, they increase. The more you don't want bad feelings, the more you increase them. The more you resist anything in life, the more you bring it to you. So don't care about bad feelings if they come upon you. Don't resist them at all, and then you take all the power of them power out of them. तो यहाँ पे अगर बैड फीलिंग आ भी रही है तो आपको अपने आप को ज्यादा बीटअप नहीं करना है, अपने आप को कोसना नहीं है कि यार मैं क्यों बैड फील कर रही हूँ, ये वो कुछ भी। उसका मतलब क्या होगा कि आप वो जो वाइल्ड हॉर्स पे चढ़े हो उसको और विप कर रहे हो आगे बड़े नेगेटिव फ्रेंजी में बनने के लिए। मतलब वो हॉर्स को और ज्यादा पावर दे रहे हो नेगेटिविटी के तरफ जाने के लिए। तो यानी आपको वो हेट भी नहीं करनी है, बैड फीलिंग्स को रेजिस्ट भी नहीं करना है, पर डेलिबरेटली आपको चुनना है क्या, गुड फीलिंग्स। गुड फीलिंग्स में क्या चूज करोगे कि मान लो कभी कुछ सिचुएशन ऐसी है भी जो अभी डिसअपॉइंटिंग टाइप ऑफ सिचुएशन है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव आप ढूंढ सकते हो। ओके, उस टाइम पे शुक्राना आपको बहुत ज्यादा काम आएगा कि किसी भी सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ चीज ऐसी होगी जिसके लिए आप शुक्र फील कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना खुद का एग्जाम्पल एक देती हूँ कि कल हम लोग कुछ एडवेंचर टाइप ऑफ कुछ ट्राई कर रहे थे,
और बार बार कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी। या तो फिर वहां उनके पास जाते हैं तो उनके पास कोई और मतलब वो नहीं है, या तो अचानक से जो जाने वाली थी रेप्टाइड टाइड हम लोग को करना था, तो वो जाने वाली थी जो 5 बजे की जो थी, उनकी जो ट्रिप होती है 5 बजे की, वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि वेदर तो बैड नहीं था, बहुत ठंडा था जो कि, पर विंड्स बहुत थे, इसकी वजह से उनको कैंसिल करनी पड़ी। फिर हम कहीं और गए, वहां पे हमने कुछ और ट्राई किया, वहां सभी चीजों में हमें कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी। फिर लास्ट में हमने एक चीज को चुना, और ये पूरे टाइम पे इतनी ज्यादा कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी, और मैं खुद भी डिसअपॉइंटमेंट के घोड़े पे चढ़ रही थी, पर मुझे पता था कि ये डिसअपॉइंटमेंट वाला घोड़ा मुझे और डिसअपॉइंटमेंट ही लाएगा। तो उसके बाद मैंने तुरंत ही जितना हो सका इतना शुक्राने में रही, शुक्राना कुछ न कुछ चीज़ों का करती रही। और आगे जाके फिर क्या हुआ, जो हमने एक डिनर का क्रूज़ लिया, और उसपे हाँ, उसपे जाने के बाद भी कुछ यानी इतनी सारी चीज़ें ऐसी हुई, मैं आपको क्या बताऊँ, कि उसके ऊपर जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों ने उनके वो नहीं लिए स्वेटर्स वगैरह। और वहां पे तो सब जो लोग आए थे उनको देख के तो लग रहा था कि जैसे कितनी ठंड लगने वाली है। वो 2-2 जैकेट्स पहन के आए थे, और हम ऐसे ही, मेरे पास जैकेट था वो मैंने अपनी बेटी को दे दिया। तो यानी पूरी जगह पे कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आ रही थी। तो भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे तो हमेशा शुक्राना में रहना है, खुशियों में रहना है। तो जो हमने जो क्रूज लिया, जो डिनर जो था, भले उस पे ठंड लग रही थी, पर ठंड को मैंने पावर ना दिया, तो मैंने वो ट्रिप इतनी एंजॉय की कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे इतना अंदर से फेथ था कि गॉड यानी सुप्रीम पावर जो भी लाएगा वो मेरी टेस्ट कर रहे हैं अभी। ये टेस्ट में मुझे पार होना है, मुझे टेस्ट में पॉजिटिवली बाहर आना है। और हाँ, मैंने वही किया। मैं ऑब्जर्व कर रही थी अपने माइंड को कि मेरा माइंड डिसअपॉइंटिंग चीजें ला रहा है, वापस वापस इरिटेट हो रहा है जब कोई लोग मना करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है। तो भी मैं हमेशा ही वो ऑब्जर्व करती रही और शुक्राना में रही। 2 ही चीजें मैं करती रही पूरे टाइम पे। तो भले मैं मेरे पास जैकेट नहीं था, हमने फिर भी वो ट्रिप बहुत ज्यादा एंजॉय की। क्योंकि जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, आपका माइंड एक्सपीरियंसेस भी आपके लिए वैसे ही लाएगा। और वहां पे हमें सब चीजों में बहुत ज्यादा मजा आया। और बिकॉज आई पास दिस टेस्ट, वो जो यूनिवर्स ने मेरे लिए टेस्ट भेजी थी, बिकॉज मैं पास हो गई। इसके बाद हमें जो सनसेट का व्यू जो देखने मिला एक और एक अगर अलग जगह पे, वो तो इतना अमेजिंग था, मुझे लगा जैसे यूनिवर्स ने मुझे ये एज ए रिवॉर्ड दिया है, जो हाईली अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि वो ट्रिप डिनर क्रूज के बाद तुरंत हमें 2 घंटे वापस ड्राइव करके हमारे होटल पे पहुंचना था। यानी हमारे पास ऐसा टाइम भी नहीं था, ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम ही था वो। अराउंड 8:45, यहाँ पे सनसेट अभी 9:15 बजे होता है। तो 9:15 के पहले लाइक ओनली हाफ एन आवर उस टाइम पे था। मैंने अचानक मुझे आया कि मुझे ये वाले पॉइंट पे जाना है, अंदर से ही आया। मैं वहां पे गई और मुझे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिला, जैसे कि ओशन के ऊपर यानी लेक के ऊपर मुझे इतना बड़ा सनसेट देखने को मिला, जो मेरी लाइफ का सबसे यादगार एक मोमेंट मेरे लिए क्रिएट हुआ, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट। तो यही आप अगर जब आप पास हो जाते हो, ये कोई बैड फीलिंग्स आती है, सिचुएशंस आती है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, कैसे भी करके आप टेस्ट में पास हो जाते हो, आपको यूनिवर्स ऐसा भर भर के देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लो पूरा दिन आपका खराब गया, पर एट द एंड आपका कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके पूरे दिन को वो बना देगा। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने का यही मेरा मतलब है कि आप अगर कोई ऐसे वाइल्ड हॉर्स पे चढ़ते हो, कोई बात नहीं, तुरंत ही शुक्राना में चले जाओ, तुरंत ही गुड फीलिंग जोन में जाने की कोशिश करो। अगर बहुत ज्यादा बैड फील हो रहा है तो बस उसको ऑब्जर्व करो, अगर लिख सकते हो तो लिख दो, कुछ भी, जो भी आप कर सकते हो वो आपके ब्रह्मास्त्र आपको यूज करने हैं। कभी कभी कोई चीज ऐसी होगी कि बहुत जल्दी हो जाएगी,
जैसे कल, हाँ, एक और चीज भी हमारे साथ हुई। जब हम यहाँ से निकले थे, हमें निकलते निकलते भी थोड़ा टाइम लगा, और फिर जैसे ही निकले 2 घंटे की बजाय हमें 3 घंटे लगे वहां पे पहुंचने के लिए, क्योंकि बीच में ब्रिज के ऊपर 1 घंटा हम ट्रैफिक में फंस गए। तो ये एक और चीज ऐसी, यानी बहुत सारी कास्केड के जैसे वो चीजें हो रही थी, पर एट द एंड क्या हुआ, जो बहुत ही एक बड़ा रिवॉर्ड मिला। तो इसी तरह से आपको भी अब कभी ऐसा कुछ होता है कि कुछ ना कुछ, अगर यूनिवर्स कोई नेगेटिव चीजें ला रही है, तो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए लाया है, और कुछ ना कुछ आपको टेस्ट करने के लिए, कि क्या आप ये टेस्ट में पास होते हो, क्या अभी भी आप शुक्राना चूज करते हो, हैप्पीनेस या अच्छी फीलिंग्स चूज करते हो, या वो बैड फीलिंग्स को ही अपने साथ आइडेंटिफाई करके उसमें पूरा चले जाते हो। ये आपके ऊपर है। ये टेस्ट कभी कभी बहुत, कभी कभी इजी होती है टेस्ट, कभी कभी ज्यादा मुश्किल भी होती है। जैसे कल फिर वो, जब मैं ट्रैफिक में फंसी थी, मेरे पास ऐसे ही मैं पेन पेपर रखती हूँ अपने पर्स के अंदर, वो मैंने निकाला और मैंने लिखना भी चालू कर दिया। मैंने एफर्मेशंस भी लिखे कि आई राइज अबव ऑल माय लिमिटेशंस। तो मैंने इतने सारे एफर्मेशंस भी 7-7 बार लिखने चालू किए, 2-3 एफर्मेशन, यानी कितने सारे, मतलब 2-3। अंदर अंदर भी मैंने एफर्मेशंस चालू किए, आई एम पीसफुल, आई एम लव, आई एम हार्मनी। और मेरे साथ सारे ब्रह्मास्त्र लगा दिए इसमें, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही थी, मैं आराम से डिसअपॉइंटमेंट में जाके ऐसे घर पे वापस भी आ सकती थी, ऐसी भी चीजें हुई थी। पर मैंने उसको चूज नहीं किया, मैं आगे होप के साथ बढ़ती रही कि चलो जो भी होगा। तो आपको भी हमेशा ऐसा ही करना है, जब भी आप ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स में या किसी भी जोन में जाते हो, आपको खुद को ही, आपको अपने आस वापस लाना है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे लगता है ये अनुष्का और मनीषा चले गए शायद, या ओके, थैंक यू मनीषा एंड आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। अभी ये हाथ थॉट्स पढ़ेंगे हम, और पॉइंट्स ऑफ पावर कल हम लेंगे। तो अब तक का सबको समझ में आया ना? Yes. Yes. ओके ओके। तो हमने कल ये पढ़ा था, आई हैव अ राइट टू हैव द लाइफ आई वांट। तो आज का हमारा हार्ट थॉट है, आई एम नाउ विलिंग टू सी ओनली माय मैग्निफिसेंस। अ थॉट व्हिच सेज आई एम अ बैड पर्सन produces a negative feeling. However, if you do not have such a thought, you will not have the feeling. Change the thought and the feeling must go. यहाँ पे भी सेम चीज इन्होंने बोली है कि कभी कभी आपको लगेगा कि यार मैं क्यों ऐसी हूँ, या मैं बैड पर्सन हूँ, मैं ये अच्छे से ठीक से प्लान नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं कर सकती, कुछ कुछ अपने खुद के लिए नेगेटिव चीजें जो आपके अंदर आती है। आपको बस ये थॉट को चेंज करना है, और फीलिंग्स अपने आप चली जाएगी। ओके, सो आई एम नाउ विलिंग टू सी ओनली माय मैग्निफिसेंस। I now choose to eliminate from my mind and life every negative, destructive, fearful idea and thought. I no longer listen to or become part of detrimental thoughts or conversations. Today, no one can harm me because I refuse to believe in being hurt. No matter how justified it may seem to be, I refuse to indulge in damaging emotions. I rise above anything that attempts to make me angry or afraid. Destructive thoughts have no power over me. Guilt does not change the past. I think and say only what I want to have created in my life. I am more than adequate for all I need to do. I am one with the power that created me. I am safe. All is well in my world. तो यहाँ पे भी लुइस है, सेम चीजें बता रही। कभी कभी तो ऐसे कोइंसाइड चीजें होती है हमारे सेशन में भी, कि बहुत ही अच्छे से हमें कुछ सिखाना चाहती है ये चीजें। तो आपके हाथ में है, अगर आपको कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो आपके हाथ में है वो लेना या नहीं लेना। आपके हाथ में है कि आपको उसको कैसे इसमें अच्छी चीजों में, अच्छे इमोशन में कन्वर्ट करना है।
तो अभी जो भी आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो या कोई लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, जो भी है, अभी आपको पावर अपने हाथ में लेना है और खुद को ही जिम्मेदार करना है सभी चीजों के लिए। और जैसे ही आप अपने आप को कोई भी डैमेजिंग चीजें बोलने लगते हो, तुरंत ही आपको अपने आप को उसमें से वापस ले आना है और बोलना है कि ये चीजें मुझे हेल्प नहीं करने वाली है। द लाइफ दैट आई वांट, जो लाइफ मुझे क्रिएट करनी है, इसमें मुझे ये चीजें हेल्प नहीं करेगी। इसी के लिए आपको वो एंगर में से, वो इमोशंस में से वापस आना है और अपने आप को बोलना है ये सब पॉजिटिव चीजें जो हम एफर्मेशंस बोलते हैं, ये सब चीजों में आपको एफर्मेशंस बहुत काम आएंगे। जिसके जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसमें मुझे कल एफर्मेशंस बहुत काम आए हैं। जो भी एफर्मेशंस मैंने आपका खुद का भी ऑडियो में सुनती हूँ उस टाइम पे, जो मैंने खुद ने बनाया है अपने लिए। तो ये सभी एफर्मेशंस बोलिए, ऐसी कोई भी लाइफ की सिचुएशन आती है, कैसी भी सिचुएशन होगी, आप पार कर पाओगे। तो हमेशा ही लाइफ के ऊपर ट्रस्ट रखे। ये एक एफर्मेशंस हमेशा बोले अपने आप को, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जैसे ही आप बोलते हो, आप अपने हाथ में से पावर, मतलब आपको भी लगता है कि आपको ही सब चीजों को कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल आप अपने हाथ में से लेके सुप्रीम को दे देते हो। जब भी आप बोलते हो कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई क्रिएट माई रिसोर्सेज फ्रॉम एन इन्फिनिट सोर्स, जब आप ये सब एफर्मेशंस अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हो, तो पावर, जो आपके अंदर का पावर है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है और आप सुप्रीम के ऊपर सब छोड़ते हो। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अपने हायर सेल्फ के ऊपर आप छोड़ रहे हो। ओके, तो यही आपको करना है। किसी चीज को पावर ज्यादा नहीं देना है, जो बैड चीज है, जो आपको भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और ऐसी ही चीजों को याद रखना है जो आपको चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। दीदी कौन सा वीडियो बनाया है आपने? मैंने वीडियो नहीं, जैसे ऑडियो बनाया है, व्हाट्सएप पे ही मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, अपने खुद के वॉइस में मेरे एफर्मेशंस रिकॉर्ड किए हैं। तो वो अच्छा, आप लोग भी रिकॉर्ड कर सकते हो अपने खुद की वॉइस में। जो भी एफर्मेशंस हिंदी में बोलने तो हिंदी में, जैसे मैंने इंग्लिश में किया हुआ है, ऐसा होगा तो वापस मैं भेज दूंगी आज ये मेरे एफर्मेशंस, तो आपको ऐसे ही एक एज एन एग्जाम्पल आपको काम आ सकते हैं। ओके, जैसे बिनीता जी ने अपने अभी बहुत ही अच्छे एफर्मेशंस भेजे थे हिंदी में, अगर किसी ने सुना हो तो, वो भी बहुत हाँ ही अच्छे थे। हाँ बीच में डाला था एक दो दिन पहले। हाँ हाँ, वही वही। तो वो भी एफर्मेशंस आप अपने लिए बोल सकते हो। आपको ये एफर्मेशंस अभी धीरे धीरे क्या होगा कि एफर्मेशंस भी आपको मेमोराइज हो जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कभी। अपने आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप एफर्मेशंस भी आपको याद आते जाएंगे कि ये सिचुएशन में मुझे ये बोलना है। अगर इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो तुरंत ही बोलना है, आई एम सेफ इन माई, आई एवरीथिंग इज वेल इन माई वर्ल्ड। अभी आपको हमेशा, अगर आप अपने खुद के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म करते हो या बोलते हो, तो तुरंत ही आपको ये बोलना है, आई एम नाउ विलिंग टू सी ओनली माई मैग्निफिसेंस। मैं अपने बारे में कुछ अच्छा ही मुझे देखना है, अच्छा ही इतना मेरे, आना भी चाहिए ना दीदी बनाने, सॉरी क्या, इतना आना भी चाहिए ना अपने आप को बनाने के लिए। बनाना नहीं है ना, यहाँ पे कितने सारे एफर्मेशन तो हम रोज लिख रहे हैं ना अभी। जैसे ये अच्छा, लुइस के हाँ बुक में से तो हमें ये एफर्मेशन मिल ही रहे हैं, और कितने सारे ओके। एफर्मेशन कोई ना कोई भेजता भी है ग्रुप में। तो अगर किसी के पास और एफर्मेशन है हिंदी वगैरह में, तो आज आप भेज देना ग्रुप में, अगर किसी के पास हो तो। सो लेट्स हेल्प ईच अदर आउट। हम अपने अपने जो भी हमारे ह्यूमंस है, जो भी यहाँ पे हमारे भाई है, बहन है, जो भी है, सबको एक अच्छी काइंडनेस की नजर से देखते, सभी के हाथ पकड़ के आगे बढ़ने में मदद करते एक दूसरे को। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही राइट, सोचना है कि हम एक दूसरे को, एक दूसरे का सपोर्ट बने, यहाँ पे एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। जितना आप दूसरे को देते, उतना ही आपके पास भी वापस आता है, हमेशा याद रखें।
तो अगर आप किसी को हेल्प करते हो अगर कोई चीजों में, तो वो चीजें सर्कल की तरह वापस आपके पास ही आती है। तो जितना हो सके यहाँ पे हमारा जितना भी हमारा बड़ा ग्रुप है अभी इसमें व्हाट्सएप में, तो ये ग्रुप में पूरे सभी लोगों को हमें एक दूसरे को हेल्प करनी है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है और हमें पता है उसके आंसर सही ढंग से, तो वो भी देना है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप के एडमिन है उन्हीं को आंसर देना है, ऐसा भी नहीं है। आप भी दे सकते हो अगर आपको पता है, तो आप भी गाइड कर सकते हो अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए। तो आज मैं अपने एडमिन्स को बोलूंगी वापस ये खाली सीक्रेट मूवी भेज देना, और कोई एफर्मेशंस हमारे पास है पहले के तो वो भी हम भेज देंगे। ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगी, अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं भी भेजती हूँ हिंदी में या कुछ भी। मेरे पास इंग्लिश में ऑडियो बना हुआ मेरा। ओह वाओ, वेरी नाइस विनीता जी, वो भी आप भेज सकते हो। हाँ ग्रुप ठीक में है, भेज देना तो सबको पता हाँ। चलेगा क्या लिखना है। कभी कभी हमें दूसरों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी हमें कुछ खुद को नहीं पता होता है कि क्या लिखना है क्या बोलना है, तो कोई बात नहीं, हम सब जर्नी में साथ में हैं, सीखेंगे एक दूसरे से, और क्या, राइट। तो थैंक यू सो मच विनीता जी, जो भी आप शेयर करते हो हमेशा ग्रुप में, बहुत ही काम की चीज होती है। थैंक और यू। बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अलका फॉर कमिंग अप। वो भी आपको बहुत सारी चीजें भेजते हैं डॉक्टर अलका, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो भी चीजें कभी कभी वो जूम के सेशंस भी हमारे ग्रुप में भेजते हैं, वो भी बहुत काम के हैं। अगर आप देखते हो यूट्यूब की लिंक भी भेजते हैं कभी कभी। तो जो भी आपको ये जर्नी में जो चीजें भी काम आती है वो आपको सब करनी है। आपको पूरे अपने आप को इमर्स करना है ये जर्नी के अंदर। तो अगर आपको कोई, पर हाँ इतना याद जरूर रखना कि और कोई चीजों में मत उलझना कि मैं ये भी कर लूं मैं वो भी कर लूं, ऐसे मत उलझना। हाँ, आपको शुक्राना में या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंट्री है आपको आगे बढ़ने के लिए, तो वो ही करना। फिर वास्तुशास्त्र में या इसमें या उसमें ज्यादा इसके रिलेटेड एटलीस्ट मत घुसना। मैं इतना ही यहाँ पे बोलना चाहूंगी, नहीं तो आप अपने आप को और ज्यादा कंफ्यूज कर दोगे। हाँ, लॉ ऑफ एट्रैक्शन के रिलेटेड है कुछ चीजें, सीक्रेट मूवी है, एफर्मेशंस है, मैजिक बुक के रिलेटेड कुछ कुछ है चीजें, शुक्राना के रिलेटेड कुछ चीजें है, वो सब आप कर सकते हो। पर इससे ज्यादा और चीजें मत करना जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। Today I don't think I have much time to take a meditation also, so it's okay, we will skip for today, we'll continue meditation from tomorrow. I'm so sorry for that. Okay, इट्स ओके, कोई बात नहीं। thank you Thank you so everybody much. for joining in. We mostly do meditation every single day, but today just it is an exception. So thank you so much for joining in, everybody. Love, light, and abundance to all of you, and Wish you the same. see you tomorrow. Thank you. Okay, बाय दीदी, bye. Thank you so so much. much. God bless you. Thank you. God bless you too. God bless you all. Thank you.